Good morning, students. Students, today we will do question answer of chapter 3rd, Gems and the Giant Fish. Okay, in last video we have done its glossary. Now today we will start question answer. Okay, let's see on the board carefully. Okay, so answer the following questions. Where did James live when we first meet him? कि जब हमने पहली बार उससे मिले जेम्स तो कहाँ रहता था? इट्स आंसर इज जेम्स लिव्ड इन अ ब्यूटिफुल हाउस बिसाइड द सी. ओके, सी के बगल में. व्हेन वी फर्स्ट मेट हिम, जब हम उससे पहली बार मिले थे. सो स्टूडेंट, वाइल राइटिंग दिस वर्ब योर राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. डोंट मेक एनी सिंगल मिस्टेक. ओके, नाउ स्टार्ट. ओके, after doing first answer you have to leave one line. Okay, you have to leave one line. Okay, now start second question. Why did he move in with his aunts? वो अपनी आंट्स के साथ क्यों गया? ठीक है, जेम्स moved in with his aunts because his parents had died. क्योंकि उसके पेरेंट्स मर चुके थे. So because of that he moved in with his aunts. Okay, you have to write its answer also. Now third question is where was he not allowed to go? वह कहाँ जाना, मतलब कि उसको कहाँ जाना अलाउ नहीं था. So its answer is James was not allowed to go down off the top of hill on which he lived with his aunts. मतलब कि उसको टॉप से नीचे, हील की टॉप से नीचे जाना अलाउ नहीं था जिसमें वो अपनी आंट्स के साथ में रहता था. ओके, सो either you can take a screenshot or you can write. Okay, so now start. I'm going to read this. Student, while writing your writing should be neat and clean. Okay, don't make any single mistake because many students make many mistakes in spellings. So before writing check your spelling 2 times. Okay, so now question 4. What happened to James' parents? ओके, जेम्स के पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था? क्या हुआ था बताइए. जेम्स पेरेंट्स were eaten up by an enormous angry rhinoceros. Okay, rhinoceros. Okay, which had escaped from the London Zoo. Okay, I repeat again. James' parents were eaten up by an enormous means पता है ना, enormous angry rhinoceros which had escaped from the
लंदन जू, जो लंदन जू से भागा हुआ था कौन, राइनोसरस, उसने उसके पेरेंट्स को खा लिया था, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन 5, व्हाट वर जेम्स आंट्स कॉल्ड, ओके। व्हाट वर जेम्स आंट्स कॉल्ड, मतलब जेम्स की आंट्स को किस नाम से कैसे बुलाया जाता था, ओके, क्या बुलाया जाता था। जेम्स आंट्स were called Aunt Sponge and Aunt Spinner, okay. So what were James aunt called, okay, James aunts were called Aunt Sponge and Aunt Speaker, okay. So from this name they were called. Question number 6, what was in the backyard of James' house, okay. What was in the backyard of James' house, जेम्स के हाउस के पीछे क्या था, in the backyard of there was an ancient peach tree, okay, that never gave any peaches, okay स्टूडेंट। देयर वॉज एन एंशियंट पीच ट्री, मतलब बहुत पुराना पीच का ट्री था जिसने कभी कोई पीच नहीं दिए थे, ओके। आइदर यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट फास्ट। नाउ आई एम गोइंग टू रीड, ओके। Okay, now question 7. What did James' cruel aunts call him? जो उसकी क्रूल आंट्स थी वो उसको किस नाम से बुलाती थी? यस,
miserable creature. You know, James cruel aunts called him okay student. What did James cruel means निर्दयी aunts call him, उसको किस नाम से बुलाती थी? Now its answer is James cruel aunts called him miserable creature. Okay, leave one line after doing this question. What did James do as he became sadder and sadder? Okay, what did James do? James ने क्या किया? As he became sadder and sadder, जब वो sadder मतलब दुखी और दुखी हो गया, ठीक है, क्या करता था वो? Can you tell me? As James became sadder or and sadder, he began कॉमा लगाना, ठीक है ना? He began to stand at the bottom of the gate of the garden. Then after comma, gazing wistfully at the lovely but forbidden world that was spread out below him like a magic carpet. बेटा its answer is long,
Okay, so you have to write carefully. Okay, as James became sadder and sadder, जब जेम्स दुखी और दुखी होता गया तो उसने क्या किया, he began to stand, उसने शुरू किया स्टैंड होना एट द बॉटम ऑफ द गेट, गेट के नीचे खड़े होकर, गार्डन के गेट के नीचे खड़े होकर, गेजिंग एक तक देखते हुए, विस्टफुली मतलब कि सैडली, ओके, एट द लवली मैं सुंदर से, बट फॉरबिडन, फॉरबिडन मीन्स क्या होता है, जिसमें वो जा नहीं सकता था, उसको वहाँ पे जाना मना था, ओके, फॉरबिडन वर्ल्ड दैट वॉज स्प्रेड आउट बिलो हिम लाइक अ मैजिक कारपेट, जो उसके नीचे बिल्कुल एक मैजिक कारपेट की तरह बिछा हुआ था, पर वहाँ पे वो जा नहीं सकता था, बट उसने क्या किया, मतलब कि उस गार्डन के गेट पे खड़े होकर वो कंटिन्यू एकटक होकर उसको देखता था, ठीक है। सो दिस इज द ऑल आंसर ऑफ दिस चैप्टर, ओके, सो राइट केयरफुली, डोंट मेक एनी सिंगल मिस्टेक, ओके स्टूडेंट्स। I am going to raise, okay, now take out your book, okay, you have to sit with book because now we will do book work, whatever given in your book, okay. Okay, after that describe each of the following and complete the table. Here you have to complete this table. Here James parents house and James aunt's house, you have to differentiate between, okay, James house, James parents house or James aunt's house, okay. So here you have to write James parents house कैसा था, फर्स्ट में आपको लिखना है ब्यूटीफुल हाउस beside द सी, और उसके आंट का हाउस कैसा था, अक्यूर रेमशेकल हाउस, टूटा फूटा ना, स्ट्रेंज सा, टूटा फूटा, क्वीर मीन्स क्या था, स्ट्रेंज, अजीब सा ना, अक्वीर रेमशेकल हाउस ऑन द टॉप ऑफ अ हाई हील, ओके, इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड, साउथ ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के साउथ में, ठीक है स्टूडेंट। अक्वीर रेमशेकल हाउस ऑन द टॉप ऑफ अ हाई हिल इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड, सो दिस यू हैव टू राइट in your book. Now after that James life in his parents house, जेम्स की लाइफ उस कैसी थी उसके पेरेंट्स के घर पे, और जेम्स लाइफ इन हिज आंट्स हाउस, और जेम्स की लाइफ उसके आंट्स के घर पे कैसी थी, यू हैव टू डिफ्रेंशिएट, ओके, हियर आल्सो। हैप्पी एंड परफेक्ट लाइफ, हैप्पी एंड परफेक्ट लाइफ, सेकेंड, और उसके आंट के घर पे कैसी लाइफ थी उसकी, अनहैप्पी एंड miserable, okay. So this is the difference between James parents house and James aunt's house, and here this is difference between James life in his parents house and James life in his aunt's house. You have to write down this. After that move
on page number 32. Okay student, here downside you can check here students. Okay, downside, read the words below and make new words using full or less. Some words can use both. Okay, understood? Read the words below and make new words. आपको ये वर्ड्स क्या करने हैं, नीचे आपको पहले रीड करने हैं, फिर आप में रीड द वर्ड्स बिलो, जो आपको नीचे दिए गए वर्ड्स को पढ़ना है, एंड मेक न्यू वर्ड्स, और नए वर्ड्स बनाने हैं यूजिंग, क्या यूज़ करते हुए, फुल और लेस. सम वर्ड्स कैन यूज़ बोथ, और कुछ वर्ड्स में दोनों ही यूज़ हो सकते हैं. ओके, नाउ स्टार्ट. केयर. अब केयर में क्या कर सकते हैं आप, देखो प्लस लेस और केयरलेस, इसको केयरफुल भी कर सकते हैं और केयरलेस भी कर, दोनों वर्ड से यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं. लाइक जैसे है केयर, तो इसमें आप प्लस कर सकते हो लेस ऑल्सो, एंड प्लस इसी वर्ड में आप कर सकते हो केयरफुल. तो यहाँ पे आपको लिखना है केयरलेस एंड फिर ज्वाइन करके केयरलेस एंड केयरफुल. ओके, लापरवाह केयरलेस, और जो ध्यान देने वाला होता है, लापरवाह नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, केयरफुल. ओके, सो यहाँ पे दो मीनिंग निकल रहे हैं इसके. और केयर से यहाँ पे केयर को अपन ने केयर में लेस और फुल को जब अपन ने ऐड किया तो दे आर टू मीनिंग्स ऑफ दिस केयर. ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू राइट join this लेस और फुल. यस, ड्रेड, ड्रेडफुल, एंड इसमें आप ड्रेडफुल, ठीक है, ड्रेडफुल करना है आपको, फुल ऐड करना है. होपलेस एंड होपफुल दोनों इसमें ऐड हो सकते हैं. चीयरफुल एंड चीयरफुल. ओके, हार्मफुल एंड हार्मलेस दोनों अपन ऐड कर सकते हैं यहाँ पे. हर्टलेस एंड हर्टफुल बोथ वी कैन ऐड. स्लीपलेस, ओके, यहाँ पे स्लीपलेस ऐड करेंगे. डाउटफुल. ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दिस. ओके, नाउ come to the page number 33. Here write a single word with full or less to complete each sentence. Use the clues given. ये clues आपके दे रखे हैं given, आपको इनको यूज़ करना और complete सेंस करना, मतलब सेंटेंस को complete करना है. फर्स्ट, रीड. I am dash to God for having wonderful parents. क्या करना है यहाँ पे, what we can write, यहाँ पे लिखना है थैंकफुल. ओके, थैंक पे हमें फुल और लेस ऐड करके, मतलब कि आई मीन दोनों में से एक वर्ड लेस या फुल ऐड करके हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है. तो यहाँ पे क्या है, आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर हैविंग वंडरफुल पेरेंट्स. तो यहाँ पे क्या करोगे आप, थैंकफुल. ओके, नाउ सेकेंड, डैश पीपल आर प्रोवाइडेड विथ शेल्टर्स. यहाँ पे क्या आएगा, होमलेस. फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल व्हेन वी स्टार्ट एनी सेंटेंस. ओके, सो हियर, ओके, होमलेस, पीपल आर प्रोवाइडेड विथ शेल्टर्स. सी, सम स्नैक्स आर harmful but others are dangerous. Okay, now D, होली इज, सॉरी, क्या इसमें कलरफुल आएगा, कलरलेस आएगा, कलरफुल. ओके, होली इज अ कलरफुल फेस्टिवल. राम इज अ केयरलेस ड्राइवर. ही हिट अ ट्री लास्ट वीक. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, केयरलेस, क्योंकि उसने ट्री को हिट किया, इट मीन्स वो केयरलेस है. Okay, so you have to write, you have to fill these blanks, okay, by these answer. Okay, now C, sound sense. ये आपको इसमें कर लेना. इसमें क्या है, जैसे इसमें देखो, fill in the first, read this. Notice the spelling of the words peach, peach from the story. Although peach is spelled with EA, जबकि ये EA से बोला जा रहा है, but इट इज़ प्रोनाउंस्ड डबल ई, और पर इसका प्रोनाउंस कैसा, डबल ई. जैसे पीच, हमने पीच वर्ड बोला तो डबल ई का इसका प्रोनाउंस हो रहा है. इट टेक्स द लॉन्ग ई साउंड. ये क्या ले रहा है, ये लॉन्ग ई साउंड ले रहा है. सिमिलर वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज आर ईच, रीच, हीट, बीट, टीच.
इसमें ई ए आ रहा है, बट ये क्या कर रही है, लॉन्ग साउंड ले रहे हैं ई की, ठीक है, डबल ई, लाइक डबल ई. नोट दैट नॉट ऑल ई ए वर्ड आर प्रोनाउंस्ड विथ अ लॉन्ग ई साउंड. ओके, मैनी टेक्स ए साउंड, एग्जाम्पल टीयर, वियर, ओके, एंड बेयर. यहाँ पे देखो इनका साउंड अलग हो रहा है, टीयर, बियर एंड बेयर. ओके, सो फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स. Fill in the blanks with words that have a long double E sound. Then read the sentences aloud. Okay, may I have my dinner? तो इसमें क्या आएगा, प्लीज. यू हैव टू राइट हियर प्लीज, PLEASE, प्लीज, क्योंकि इसमें देखो लॉन्ग ई साउंड आ रहा है इसमें. इट इज टाइम टू ईट डिनर. ओके, फ्रॉग्स लाइक टू लीप इन द पॉन्ड. Now I don't eat meat. I am vegetarian. Okay, meat. बेटा यहाँ पे ये बता रहा है कि इसका साउंड, इसका देखो ई ए का साउंड कैसा आ रहा है, डबल ई जैसा साउंड आ रहा है इसमें, ये लॉन्ग साउंड आ रहा है. ओके, सो यू हैव टू देखो ईट, यहाँ पे लॉन्ग, यहाँ पे स्पेलिंग तो ई ए है, पर इसका साउंड कैसा आ रहा है, डबल ई जैसा साउंड आ रहा है इसका, मतलब कि लॉन्ग साउंड आ रहा है ई का. ओके, तो माई मदर लाइक्स मी टू कीप माई बेडरूम नाइस एंड क्लीन. Okay, now I would like to have a cup of tea. Okay, so these words you have to write in this blanks. Okay, now let's move on the page number 35. First you have to read this page number, okay, carefully, because it's all information about the pronoun, okay, personal pronoun. And after reading this page you have to complete these exercise. Okay, this exercise, first and second exercise as a HW. Okay, HW क्या आपका, पेज नंबर, do पेज नंबर 36. Okay, because in grammar section we have read about the pronoun section. Okay, so you have to complete this page number. Okay, so student, our 3 chapter has completed. Now in next video we will read new chapter. Okay, till then keep learning and keep practicing. Okay.